Okay, shall we start now? Who can recap what all things we discussed in our last class? And who will be defining job evaluation? Yes. Rating of the job. When in an organization there are number of job, we compare and then accordingly we give value to the job, or we add on the worth of the job, right? That is the process of job evaluation. And after that we discussed objectives. Who can discuss the objective? Who can recap? Okay. Okay, yes. Yes. Huh? Grievance, yes. Good. Good. And you both? No points. Rohit and Bittu. Speak up. Anything else? Yes. So these were the few objectives. Now we had already discussed all the process. Process was done. How first? What comes first? Analysis. Any confusion? Why analysis comes first? Why job analysis comes first before job evaluation? Huh? Yes, actual what type of things they need to perform, what all skills are required. Why you're reacting too much? I'm also standing. Nothing is stinking, I suppose. AC is working? I can smell that much. I think it is okay. You better come and sit over there if you're feeling uncomfortable. Is it okay now? Shall we proceed? Because I think I can't feel any bad smell. Okay, fine. So steps was done, advantage was done, and today we had to discuss method we had to discuss today. Your drawback we had already done that. Yes, what are the drawbacks? Human error and yes. So because of that, the proper judgment is not possible. So next is very important thing, or from which part question is basically framed, is the method part of job evaluation. Okay, there are basically two methods through which we can evaluate job. Quantitative, you will be drawing the internal exam. You have to draw the chart. Quantitative and qualitative. Qualitative and quantitative. Okay. In qualitative means numbers will not be given here, and in quantitative numbers will be given. Okay, that is the main difference between qualitative and quantitative. So where in qualitative, if we talk about, again, it has been bifurcated into two methods. Ranking method. Okay, one is ranking and second one is grading method. First one is qualitative. Quantitative or non-quantitative. You can also say quantitative and non-quantitative, or you can also say qualitative and quantitative. Right? So first one is ranking, or you can also say job comparison. Able to see where my cursor is moving? See, one is ranking or job comparison. Second one is grading or job classification. And in quantitative, if we talk, then in quantitative we have point rating, and second one is factor comparison. Okay, there are four major method of job evaluation. From these method, we compare each and every job and we rate accordingly, and we associate value to the job. मतलब इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन का यही चार मेथड है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन का
सारा जॉब कंपेयर करते हैं और उसको वैल्यू हम असाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाम ही बता रहा है, पहला मेथड अगर हम देखें तो नेम ओनली सिग्निफाइज, इट इज रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में यहाँ पे हर एक जॉब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो हमेशा कंपेयर करते हैं एक एक जॉब से। ठीक है, तो जो आप ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की देखते हैं वो बेसिकली रैंकिंग मेथड से ही होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कैसे जानते हैं कि हाँ इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। ठीक है, तो रैंकिंग मेथड का बेसिकली पॉइंटर्स क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे या क्या क्या कंटेंट आपको पता होना चाहिए। रैंकिंग मेथड में सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, कैसे वो काम करता है, यानी उसका प्रोसेस क्या होगा, रैंकिंग करने का क्या प्रोसेस होगा, और दूसरा मेरिट और डिमेरिट। इतना कंटेंट होना चाहिए चारों मेथड का। तो सबसे पहले अगर मैं रैंकिंग मेथड की बात करूं तो रैंकिंग मेथड में सबसे पहला, चूंकि ये क्वालिटेटिव मेथड है तो वी नीड नॉट टू असाइन नंबर्स टू इट, पहला। दूसरा, किस बेसिस पे रैंकिंग करेंगे हम लोग, हाँ किस बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं तब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, कितना टफ है, कितना इजी है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, कितना काम करना पड़ेगा, कितने क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसके बेसिस पे हम लोग जॉब को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इस काम को करने के लिए कौन सा स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी, तो कितना टफ होगा, कितना टेक्निकल होगा, कितना नॉन टेक्निकल होगा, रिस्की है या नहीं है, ये सारा पॉइंटर्स हम लोग देखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कंपेयर करते हैं, तब हम हायरार्की में सेट करते हैं कि अच्छा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर बैंक की हम लोग बात करें तो हम सबसे नीचे रखते हैं चलो गार्ड को, उसके ऊपर रखेंगे हम लोग क्लर्क को, उसके ऊपर रखेंगे पीओ को। ये क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेयर करके तब वो हायरार्की। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे काम किया, प्रोसेस में सबसे पहले हम जॉब के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रेटर भी तो असाइन करेंगे, कि जो रेटर आपको पढ़ेगा कि हाँ कौन से जॉब को हम ऊपर रखेंगे, कौन सी जॉब को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम हाँ वेज असाइन करेंगे, किसको कितना पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। आप सोचिए मैरिट और डिमेरिट के बारे में। मैरिट पे पहले आइए, रैंकिंग मेथड का मेरिट क्या हो सकता है, इसके अलावा मेथड इजी है, मेथड काफी इजी है, इकोनॉमिकल है, राइट। और छोटा छोटा कितना भी ऑर्गेनाइजेशन हो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मैरिड है आपके रैंकिंग मेथड का। नहीं, ज्यादा अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हर एक पोस्ट को लेना विल बी अगेन टफ। ठीक है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी इसको यूज कर सकता है रैंकिंग मेथड को। ठीक है, छोटा बड़ा सब यूज कर सकता है, लेकिन ज्यादा अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर होता है तो इट विल बी टफ कि एक एक जॉब को हम कंपेयर करें। ठीक है, और अगेन और क्या डिमेरिट होता है कि ये अगेन करने वाला तो रेटर है, तो अगेन यहाँ पे ह्यूमन एरर का चांसेस है, सब्जेक्टिव होने का चांसेस है। ठीक है, उनके नजर में स्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और का हो सकता है कम है, और जबकि हम उसको उसी हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, जबकि पता चला कि जो हमारे ऊपर है उससे ज्यादा काम हमको करना पड़ रहा है। समझ आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे ह्यूमन एरर का चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ आया, तो ये हाँ, तो ये हो गया आपका रैंकिंग मेथड का कंप्लीट कंटेंट। बाकी लिखेंगे कैसे, एवरीथिंग इज रिटन। समझने के बाद यू कैन गो थ्रू दिस। द रैंकिंग मेथड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, in this method each job as a whole is compared with other, and this comparison of jobs goes on until all the job have been evaluated and ranked. All jobs are ranked in the order of their importance, from simplest to the hardest or from highest to the lowest. Done. यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी के जॉब को रैंक किया गया है, आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी जॉब। तो सबसे पहला सबसे नीचे पोस्ट पे आता है लेक्चरर, ठीक है, या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसका पे स्केल अभी रिवाइज हो गया है, ये प्रीवियस आपके बुक से उठाया गया है। उसके बाद फिर है रीडर, उसके बाद है प्रोफेसर। ठीक है, अब हो गया है इसी स्केल को कन्वर्ट किया गया, इसके जस्ट ऊपर होता है रीडर को ही अब एसोसिएट प्रोफेसर कर दिया गया।
पहले ये था आपका रैंकिंग, डेजिग्नेशन लेक्चरर का होता था, रीडर का होता था, प्रोफेसर का होता था। अब है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इसको रीनेम किया गया है। अब है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको रीडर को बोला गया है एसोसिएट प्रोफेसर, और सबसे हाईएस्ट डेजिग्नेशन को बोला गया है प्रोफेसर। ठीक है, तो ये हम रैंकिंग कैसे कर पा रहे हैं? अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे उनका काम होगा सिर्फ चलो पढ़ाना। अब एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर बहुत सारे लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, लैब स्टैब्लिश करना, कोई बुक्स लिखना, आर्टिकल लिखना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर प्रोफेसर, प्रोफेसर का अकॉर्डिंगली अगेन इन दोनों से ज्यादा काम होगा। ठीक है, तो सर पे स्केल है, रेंज बताया गया यहाँ पे 8,000, ये कम है, ये पहले डेटा, ये आपका बुक है, बुक का नाम है एस एस खन्ना, वो ये स्केल बताया गया है, जैसे 8,000 से लेकर के 12,000 तक मिल सकता है, तो सेम वे, हाँ सेम वे 8.5 से लेकर के ये इतना मिल सकता है। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता करके कुछ एक रफ फिगर बताया गया। क्या? हाँ, तो साढ़े वाला ऑप्शन है, ये पेज अब रेंज बताया गया है आपका। ठीक है, इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक हम उसको पे कर सकते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ी कहीं किसी पे स्केल में दिया जाता है, हमेशा रेंज लिखा रहता है। क्या ये वाला आप देख रहे हैं ना? हाँ, तो रेंज है ये 12,420, 12,000 और 12,420 से लेकर के 18,300। हाँ, इस टाइप से। हाँ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था, मतलब यही है। अब ठीक है, तो इस तरीके से होता है रैंकिंग आपका। ये यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एग्जांपल लिया, आप किसी का भी कंफर्टेबल जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है उसका आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं उसका हायरार्की आप चेक कर सकते हैं कि कैसे रैंकिंग होता है। ठीक है, जैसे आप लोग उस दिन मार्केटिंग का डिस्कशन कर रहे थे, तो जिस भी जॉब में जाना है आपको नेट पे डिटेल पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हायरार्की है, राइट, और क्या 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 पे स्केल मिलता है, आपको वहां पता चल जाएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ रैंकिंग मेथड, अब यहाँ पे सेम वही जैसे अभी आपको बताया गया कैसे हाउ इट वर्क्स, यानी क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होगा, वही यहाँ पे दिया हुआ है। एनालाइज एंड डिस्क्राइब जॉब्स, bringing out those aspects which are to be used for the purpose of job comparison। यहाँ पे बेसिकली जॉब एनालिसिस की बात हो रही है कि हम लोग सारे जॉब को पहले एनालाइज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे बेंचमार्क, ठीक है, कि कितने 10 से लेके 20 जॉब को करना है। आई थिंक इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यू कैन गो थ्रू दिस। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप रीडिंग देख लीजिए, मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में। ठीक है, आपका जो एस एस खन्ना की बुक है उसका ये कंटेंट है। ठीक है, और इसके अलावा एक नाम भूल गई, एक और राइटर अच्छा है आपका, अश्वत्थापा। अश्वत्थापा बुक आप अच्छी इसलिए है क्योंकि उसमें केस स्टडी के थ्रू वहाँ पे बताया गया सारा कुछ। ठीक है, बाकी इजी लैंग्वेज अगर बोलिए तो एस एस खन्ना का बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है, बट बुक इज गुड। तो अगर आपको बुक पढ़ना है एचआर के लिए तो या तो आप एस एस खन्ना का लीजिए या नहीं तो अश्वत्थापा की बुक। ठीक है, नेक्स्ट इज उसी तरीके से रैंक किया गया, जो अभी आपको बताया गया वही सारा पॉइंटर्स लिखा गया है। मेरिट जो अभी डिस्कशन हुआ वही सारा पॉइंटर्स है। सिंपलेस्ट मेथड, क्वाइट इकोनॉमिकल, टाइम कंज्यूमिंग, इन्वॉल्व लिटिल पेपर वर्क। इकोनॉमिकल मतलब पैसा कम लगता है, क्वाइट कोई भी चीज इकोनॉमिकल है मतलब क्या हुआ? अरे रैंकिंग ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, आप बस एक एक उठा रहे हैं। अभी आगे और देखेंगे आप, देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। ये सब सिंपल मेथड है, लेकिन अभी जब पॉइंट मेथड अभी आप देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से गेस करके कि हाँ ये डेजिग्नेशन है तो ये काम होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है रैंकिंग मेथड में। ठीक है, बस हाँ स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये काम होगा। आपको रिसेप्शनिस्ट है, क्या क्या काम हो सकता है रिसेप्शनिस्ट का, सोचिए क्या क्या काम हो सकता है किसी प्रोफेसर का, क्या क्या काम हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, राइट। ये जस्ट हम लोग गेस करके इस तरीके से हम लोग
निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे धीरे धीरे आप देखिएगा और कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कैसे डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आप बाकी मेथड नहीं देख रहे हैं ना, और जब पूरा हो जाएगा तब आप बताइएगा कि रैंकिंग मेथड सबसे सिंपल। हाँ, तो रेटर अपॉइंट होता है, बताया तो मैंने पहले। वो एक, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन वो ऑर्गेनाइजेशन को कितने अच्छे तरीके से जानता है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से ही रेटर अपॉइंट होता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी रेटर उठा के बना दिया जाएगा। उसको ऑर्गेनाइजेशन का कितना समझ है उसके अकॉर्डिंग ही रेटर अपॉइंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ग्रेडिंग मेथड। डीमेरिट तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट है, ठीक है। अनमैनेजेबिलिटी है, इट सफर्स फ्रॉम इट्स sheer अनमैनेजेबिलिटी व्हेन देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब, ठीक है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जॉब होगा तो अगेन हर एक का कंपैरिजन करना और ये टेक आउट करना कौन बेटर है, किससे बेटर है, कितना वैल्यू असाइन करना होता है। उसके अकॉर्डिंग और रखा जाएगा। अभी आप फिलहाल इतना सिंपल ये जान लीजिए कि रैंकिंग मेथड बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना सुटेबल नहीं होता है। नंबर्स ऑफ जॉब बढ़ेगा तो रैंकिंग मेथड जनरली दिक्कत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग, ग्रेड का मतलब क्या हुआ? ABCD याद है, हम लोग डिस्कशन किए थे परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि 80 से लेकर के 100% तक को हम A रैंक दे रहे हैं, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली फिर हम 70 to 80 B रैंक दे रहे हैं। तो क्या हम एक सर्टेन ग्रुप को असाइन कर रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ कैसे हुआ? अब हम ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जॉब को कंपेयर नहीं करके हम डिवाइड कर देंगे कोई सेट पे। जैसे मान लीजिए कितना टेक्निकल जॉब है, कितना स्किल्ड जॉब है सबको उस ग्रेड में, कितना अनस्किल्ड जॉब है सर, उससे रिलेटेड जितना जॉब है उसको, मतलब 3 4 5 जॉब हम एक कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। समझ आया? एक जॉब, एक कैटेगरी, जैसे स्किल्ड में किसको किसको हम रखेंगे, अनस्किल्ड में किसको किसको रखेंगे, मैनेजरियल में किसको किसको ग्रेड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कैटेगरी बना देते हैं और 3 4 जॉब को ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखिए गवर्नमेंट जॉब में जनरली ग्रेडिंग सिस्टम ही होता है। रेलवे वगैरह में देखते होंगे आप, उसमें बोला जाता है क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, ठीक है, ग्रेड 1 ऑफिसर, ग्रेड 2 ऑफिसर, इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। हाँ हाँ, SSC वगैरह का जो आप फिल करते होंगे वो सब, हाँ। तो ये सब क्या है, हाँ, वो भी क्लासिफाई कर दिया जाता है। स्केल 1 स्केल 2 जो आप देख रहे हैं वो भी आपका ग्रुपिंग किया जाता है कि इस जॉब से लेके इस जॉब को हम लोग इस स्केल में रखेंगे, इस क्लास में रखेंगे या इस ग्रेड में रखेंगे। हाँ, स्केल 1 जितना होगा तो सारे स्केल का, हाँ हाँ। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम ही हुआ, रेलवे में भी ग्रेडिंग सिस्टम ही चलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर अगेन वही 3 कंटेंट, क्या है ग्रेडिंग सिस्टम, समझ जाएंगे कैसे काम करता है, क्या मेरिट है क्या डीमेरिट है, ठीक है। सेम कंटेंट आपका ग्रेडिंग सिस्टम में ही होगा। ये आपको रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए क्लास 1 के अंदर ये एग्जाम्पल आप शो कर देंगे। क्लास 1 में सारे एग्जीक्यूटिव को रखा गया है, ठीक है। क्लास 2 में स्किल्ड वर्कर को रखा गया है, जितना आपका परचेजिंग असिस्टेंट है, कैशियर है, फिर रिसिप्ट क्लर्क है। फिर सेमी स्किल्ड में रखा गया है स्टीनोटाइपिस्ट को, मशीन ऑपरेटर को, स्विच बोर्ड ऑपरेटर को। क्लास 4 में अनस्किल्ड को, जितना आपका प्यून, मैसेंजर, हाउस स्टाफ वगैरह है, वो आपको क्लास 4 में रखा गया, जितना अनस्किल्ड वर्कर आप देखते हैं, ठीक है। तो जितना एग्जाम्पल आप लिखेंगे उतना बेटर मार्किंग होगा। अभी रिसेप्शनिस्ट भी तो है आपका, सेमी स्किल्ड में रखेंगे आप। हाँ, यहाँ पे है स्किल्ड में रिसिप्ट क्लर्क हो गया, परचेजिंग असिस्टेंट हो गया, कैशियर, डिपेंडिंग कि कौन ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं आप, किस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं? हाँ। आगे चलिए, मेरिट। मेरिट क्या क्या होगा? ठीक है, ये भी इजी है। और देखिए मैक्सिमम जॉब को हम 3 4 ग्रेड या 5 ग्रुप बना करके हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी कॉस्ट एफिशिएंट होगा, ये भी इकोनॉमिकल होगा,
ठीक है, ये भी थोड़ा इजी होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू ऑपरेट, इकोनॉमिकल, सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रुपिंग ऑफ जॉब इनटू क्लासिफिकेशन मेक्स पे डिटर्मिनेशन प्रॉब्लम इजी टू एडमिनिस्टर। ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, जनरली गवर्नमेंट का जितना भी जॉब है वो इस मेथड को अप्लाई करती है। यहाँ पे भी सफर फ्रॉम पर्सनल बाइस ऑफ द कमिटी मेंबर, यहाँ पे कमिटी मेंबर मिलकर के बैठते हैं और ग्रुपिंग करते हैं कौन किस क्लास में जाना चाहिए। ठीक है, कैन नॉट डील विद कॉम्प्लेक्स जॉब विच विल नॉट फिट नीटली इनटू वन ग्रेड, फिर दिस मेथड आर रेयरली यूज्ड इन इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारा इसका हाँ डिमेरिट है आपका ग्रेडिंग मेथड का। और यहाँ पे आपका खत्म होता है क्वालिटेटिव मेथड, यानी इन दोनों में हम लोग कोई नंबर से एसोसिएट नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे बस ऐसे कि हाँ क्या क्या काम करना होगा उस हिसाब से हम लोग रैंकिंग में फिट कर रहे हैं या फिर ग्रेड में फिट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड पे, जहां पे अब होगा नंबर का गेम। ठीक है, सबसे पहला है पॉइंट मेथड, और यही सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। आई थिंक ये लास्ट असाइनमेंट में नजर आया था ये क्वेश्चन। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन विल बी पॉइंट मेथड। हाँ, आगे देखिए, और सबसे कॉम्प्लेक्स भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब कैसे आप इजी और कैसे आप कॉम्प्लेक्स है वो आप देखते चले जाइए। अंडर दिस मेथड जॉब्स आर ब्रोक डाउन बेस्ड ऑन वेरियस आइडेंटिफिएबल फैक्टर्स। ये जितना फैक्टर्स है उसमें सबसे पहले जॉब उठाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या क्या फैक्टर्स लगेगा वो हम डिवाइड कर देते हैं। अब ये फैक्टर्स मतलब इस बेसिस पे स्किल, ठीक है, स्किल इन द सेंस सेमी स्किल है या फिर स्किल्ड है, ठीक है, या फिर अनस्किल्ड है, इस तरीके से हम पहले कैटेगरी करें। ठीक है, यानी अब यहाँ पे पेपर वर्क इन्वॉल्व होना शुरू हो, समझ आया। सेकेंड एफर्ट, एफर्ट मेंटल एफर्ट लगेगा कि फिजिकल एफर्ट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग की जरूरत होगी नहीं होगी, नॉलेज कितना चाहिए पर्टिकुलर जॉब में, हजार्ड्स मतलब जो जॉब करेंगे आप उसमें आपके लाइफ पे कितना रिस्क हो सकता है। ठीक है, रिस्क अगर ज्यादा होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग वेज भी असाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है वो कितना एसोसिएटेड है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगेन पॉइंट और फिर वेज असाइन होगा। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स आर एलोकेटेड टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर्स ब्रोक डाउन होता है किसी जॉब का, उसके बाद फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको लगा ही दीजिए, बार बार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, समझ आया। कोई एक जॉब ले लेंगे उसके बाद इसी तरीके से फैक्टर्स लिस्ट डाउन करेंगे और उस फैक्टर्स को अगेन फिर हम लोग डिफाइन करेंगे और वेट असाइन करेंगे। देन फर्स्ट स्टेप फैक्टर्स। ठीक है, पहला स्टेप में जॉब हम लिए, सेकंड स्टेप में फैक्टर्स में ब्रेक किए, उसके बाद हम वेट असाइन किए। वेट असाइन करने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे प्रोफेसर है, ठीक है, तो प्रोफेसर में हजार्ड का कोई वेटेज नहीं है। ठीक है, नॉलेज का बहुत वेटेज है, ट्रेनिंग का अकॉर्डिंगली जिस तरीके से वेटेज होगा, वेटेज के हिसाब, वेटेज मतलब क्या, इंपॉर्टेंस कितना है, कौन से चीज का कौन से फैक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है किस जॉब। ठीक है, वो चीज हम लोग देखेंगे। On the importance to perform the job, then points allocated to various factors of the job are then summed. देखिए यहाँ पे और यहाँ अलग अलग करके डिफाइन किया, जैसे स्किल, स्किल में क्या क्या हम लोग एक्सपीरियंस देखेंगे, एक्सपीरियंस की जरूरत है या नहीं है, एजुकेशन की देखेंगे जरूरत कितनी है, एबिलिटी की जरूरत देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिजिकल यानी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उसका, या फिर सुपरवाइजरी मतलब सजेशन करने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका। ठीक है, एफर्ट में अभी डिस्कशन हुआ मेंटल या फिजिकल, वर्किंग कंडीशन में लोकेशन क्या होगा, हजार्ड क्या होगा, फिर एक्सट्रीम्स इन एनवायरमेंट। ठीक है, एक्सट्रीम्स इन एनवायरमेंट मतलब आप ऐसे लोकेशन पे मान लीजिए आपको प्लेस कर दिया गया जहां बहुत ज्यादा भूकंप है। ठीक है, भूकंप प्रोन एरिया, या फिर मान लीजिए लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, अकॉर्डिंगली आपका ये सब इम्पैक्ट करेगा। लाइट
हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल फेनोमेना की बात हो रही है, ठीक है, ये सब तो मैन मेड है, ठीक है। हाँ, यही चीज अगर आप थंडर स्टॉर्म से, लाइटनिंग से अगर आप ये करेंगे कि अगर हम ऐसे इलाके में पोस्टेड है जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग वगैरह होता है, बिजली ये वज्रपात बोलते हैं ना लोग, वज्रपात के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली आपको वेट असाइन होता है, ठीक है, और पॉइंट असाइन होता है, राइट। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यही सिस्टम होता है। अब देखिए स्टेप वाइज आपको यहाँ करके दिखाया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला असाइन पॉइंट, यहाँ देखिए, द एनालिस्ट डिवाइड ईच फैक्टर टू बी यूज्ड इनटू लेवल एंड डिफाइन एंड असाइन द पॉइंट टू ईच। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही कुड डिफाइन द एक्सपीरियंस फैक्टर इनटू 5 लेवल विद पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। जैसे अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस में हम देखेंगे, अगर नो एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट, अगर 1 to 3 एक्सपीरियंस है तो 30 पॉइंट, 4 से 5 50 पॉइंट। तो ये देख रहे हैं कि किस जॉब में, अगर मान लीजिए हम क्लर्क के पोस्ट के लिए हम हायर कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस को ज्यादा वेटेज हम नहीं देंगे अभी यहाँ, हालांकि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से पॉइंट भी आपका बढ़ता चला जाएगा। याद करिए कौन से चैप्टर में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए थे, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग पॉइंट डिफाइन हुआ था। एप्लीकेशन ब्लैंक में हम लोग डिस्कशन किए थे सिलेक्शन चैप्टर में। स्क्रीनिंग के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम लोग करते हैं, एक एप्लीकेशन होता है नॉर्मल एप्लीकेशन, एक होता है वेटेड एप्लीकेशन। तो वेटेड एप्लीकेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया, याद है? हाँ, तो गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका असाइनिंग पॉइंट। सेकंड है वेटेज। वेटेज मतलब वही, जिस जॉब को हम जितना वेटेज देंगे, क्लर्क के लिए एक्सपीरियंस को उतना वेटेज नहीं देंगे, ठीक है। फिर अगेन अगर हम प्रोफेसर के जॉब के लिए कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा वेटेज देंगे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट और वेटेज दोनों को इंटू किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद सम किया जाता है, और सम में जो टोटल आएगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा उस हिसाब से मार्किंग होता है, ठीक है। सब चीज यहाँ पे करवा के दिखाया गया है, देखिए 50 पॉइंट इंटू 1.5 वेटेज फैक्टर, उसके बाद सम टोटल करके हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं नंबर्स का गेम है, यस, और नंबर गेम है मतलब यहाँ पे कोई भी तरह का किसी भी एम्प्लॉय में ग्रीवांस होगा नहीं, क्योंकि जो चीज है सामने है, और क्यों है, किसी भी तरीके का फेवरेटिज्म नहीं है, बायसनेस नहीं है, यस और नो। या फिर आप ये बोलिए ह्यूमन एरर का चांसेस अगेन यहाँ पे, हाँ ह्यूमन ही करेगा, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट असाइन कर रहे हैं ना, सब चीज को अच्छे से बैठ के बाइफर्केट कर रहे हैं और पॉइंट असाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, ठीक है। वाइडली यूज्ड और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इतना एफर्ट लेना इज नॉट सजेस्टेड। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो इतना बैठ करके आप एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, इतना टाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इतना पैसा इन्वॉल्व होगा, तो इतना एफर्ट लगाना इज यूजलेस, सो इट इज सुटेबल फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपका पॉइंट मेथड, ठीक है। इसी तरीके से जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, मैरिड, डिमैरिड, ठीक है, अभी तो डिस्कशन हुआ मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। ह्यूमन prejudice and human judgment are minimized, that is the system cannot be easily manipulated, ठीक है। next, being a systematic method, worker of the organization favor this method, ठीक है। आप कोई अगर आके पूछेगा आप इसको ज्यादा क्यों दिए, इस पोस्ट को कम क्यों दे रहे हैं, तो आपके पास, ठीक है। स्केल डेवलप्ड इन दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। जो भी आप करेंगे ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग है, और ये आप लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको बीच बीच में वही लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इन्फ्लेशन रेट, डिमांड एंड सप्लाई, उसमें भी अगर नंबर ऑफ द जॉब अगर कोई हम इंक्रीज करते हैं फिर उसको रिवाइज करना होता है। अगर जितना जॉब है उसमें अगर एक और कोई जॉब हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था ना, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी आजकल टेक्निकल का ज्यादा जरूरत पड़ रहा है, तो सेम है बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरत पड़ सकता है, कोई नया पोस्ट अवतार ले सकता है, राइट। तो उस नया पोस्ट जो आया अगेन हमको उसको ग्रेड देना पड़ेगा ना,
हाँ पूरा लाइन बोले ना, सर्विस को क्या, अच्छा ठीक है। अब अकॉर्डिंगली है आपका डीमेरिट, अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एन एवरेज वर्कर की। आप सोचिए ना, अगर आप प्यून को ये समझाने के लिए बैठे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वो प्यून ही है, अनस्किल्ड वर्कर, तो उन लोग को एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। फिर a lot of clerical work is involved in recording rating scale, not suitable for managerial job wherein the work contained is not measurable in quantitative term। जहाँ पे काम हम क्वांटिटेटिव टर्म में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वहां पे फिर ये क्वांटिटेटिव टर्म मतलब कि आप जैसे मान लीजिए मैनेजरियल जॉब है, मैनेजरियल जॉब में मेंटल एफर्ट ज्यादा है, अब वो क्या हम मेजर कर सकते हैं कितना दिमाग यूज हुआ, कितना कम दिमाग यूज हुआ, ठीक है। तो वहां पे फिर अगेन ये मात खा जाता है, लेकिन डिफिकल्ट है मेजर कर, वो मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब लास्ट मेथड है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ये आपका लास्ट मेथड है। फैक्टर कंपैरिजन मेथड को समझने के लिए सबसे इजी आपके लिए ये टेबल है, बस यही टेबल देखिए और सारा समझ में आ जाएगा। देखिए ये की जॉब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रीशियन का ले रहे हैं, वेल्डर का ले रहे हैं और मैकेनिस्ट का ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का मेंटल रिक्वायरमेंट कितना है, जस्ट नंबर जॉट डाउन कर लिए, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट कितना है, स्किल कितना, वर्किंग कंडीशन कितना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना। अब ये सब ऐड करके यहाँ पे बेज रेट डिसाइड हुआ है, ठीक है। ये सब अगर आप ये नंबर देखिएगा ध्यान से, तो ये सब इसका एडिशन किया गया है, समझ आया, देख रहे क्या किस में, हाँ तो इलेक्ट्रीशियन वेल्डर मैकेनिस्ट का है ये, हाँ ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स दिया गया है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ये सब अब सुनेंगे आगे, ये पॉइंट दिया गया है इसको। अब इसी में से नया जॉब, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, नया जॉब यहाँ टूल मेकर लिया गया है, यहाँ देखिए ये है टूल मेकर। अब इसको हम लोग अगर देखना होगा तो ये देखना होगा क्या हमको मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या टूल मेकर का इलेक्ट्रीशियन से ज्यादा होता है, वेल्डर से ज्यादा होता है या मैकेनिस्ट से ज्यादा होता है, अकॉर्डिंगली प्लेस करेंगे। सेम वे आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट कितना होता है टूल मेकर का, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का ज्यादा होता है कि टूल मेकर का ज्यादा होता है कि वेल्डर का होता है कि मैकेनिस्ट का होता है, अकॉर्डिंगली कंपैरेटिवली हम लोग मार्किंग करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैकेनिस्ट से ज्यादा होता है तो 5 से ज्यादा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए वेल्डर से कम होता है, वेल्डर का ज्यादा एफर्ट अगर होता है तो वेल्डर से कम देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस बीच में इंसर्ट करते हैं कोई जॉब, समझ आए। ये हो गया आपका फैक्टर कंपैरिजन। क्यों फैक्टर कंपैरिजन, फैक्टर भी यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉइंट मेथड को भी लिया गया है और रैंकिंग मेथड को भी लिया गया है। अगर आप ध्यान दीजिए तो पॉइंट मेथड क्यों लिया गया है, क्योंकि पॉइंट मेथड यहाँ मार्किंग और पॉइंट भी एसोसिएट किया गया है। रैंकिंग मेथड कैसे एसोसिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं प्लेस उसका कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रीशियन के ऊपर या नीचे, वेल्डर के ऊपर या नीचे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है विच इज दैट मेथड विच यूजेस बोथ रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड, देन इट विल बी फैक्टर कंपैरिजन। अच्छा, कई बार इसका इनोवेटर कौन है वो भी पूछा गया है, तो इसके इनोवेटर का नाम मैं ऐड नहीं किए हूँ, कुछ ईजे बेंच करके नाम है। और इस टेबल में देखिए सारा समराइज करके दिया हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फैक्टर कंपैरिजन का, रैंकिंग का, जॉब क्लासिफिकेशन का, पॉइंट रेटिंग का। अगेन ये एट द टाइम ऑफ रिवीजन बस यही चार्ट आपका काम देगा, ठीक है। और ये हो गया सारा मेथड आपका जॉब इवैल्यूएशन का, और ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी। और रही बात कौन इनोवेट किया था,